بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، ہم ابھی جو ہمارے سامنے مسائل ہیں جن کو ہم پیش کر رہے ہیں، یہ فقہی مسائل ہیں، کتاب و سنت کے مسائل ہیں، آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی جو مسائل ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ اجارہ کے مسائل کہلاتے ہیں۔ اجارہ کا مطلب کوئی چیز کرائے پر لینا یا کرائے پر دینا۔ اسی طرح سے اجرت پر جو لوگوں کو بھی، یعنی انسانوں کو، کام کرنے والوں کو، امپلائیز کو جو ہائر کیا جاتا ہے، اجرت ان کو دی جاتی ہے، تو اس میں وہ مسائل بھی داخل ہوتے ہیں۔ تو وہی مسائل ابھی آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم نے جو مسائل پیش کیے اس میں سے ایک مسئلہ تھا دکان اور مکان کو کرائے پر لینے کے تعلق سے اور کرائے پر دینے کے تعلق سے۔ میں نے چند باتیں اس سلسلے کی آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ابھی جو ہے زمین کو کرائے پر لینے دینے کے تعلق سے بات بھی آپ کے سامنے آئی، اور مزارعہ جو ہوتا تھا، یعنی بٹائی پر کھیت دیتے تھے کہ جو پیداوار ہوگی، زمین کسی اور کی ہے، کام کوئی اور کرے گا، اس میں جو پیداوار ہوگی وہ دونوں جیسا پہلے سے طے کیا ہے وہ نسبت کے لحاظ سے آپس میں تقسیم کریں گے۔ اگر 50-50 طے تھا تو دونوں 50-50 جو بھی پیداوار ہوگی وہ اس میں سے لے لیں گے۔ تو یہ بھی ایک کرائے کی ہی شکل تھی، وہ کرائے کی ہی شکل اس کو بھی مانا جاتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اسی کرائے سے جڑے ہوئے کچھ جو ہے مکان اور دکان جو کرائے پر لی جاتی ہے نا، اس کے تعلق سے ہی بات کریں گے۔ ہم نے ڈپازٹ کے تعلق سے بات کی تھی، یا ڈپازٹ نہ کر کے جو یہاں بنگلور میں ایڈوانس کہتے ہیں، یا وہ ایک طرح سے وہ سیکورٹی منی ہے، اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے اس میں، پاس جو ہے جگہوں پر، الگ الگ جگہوں کا الگ الگ اس میں حساب ہے کہ جب دکان لیتا ہے کوئی شخص، یہ دکان میں ہوتا ہے، مکان میں نہیں، دکان میں یہ چلتا ہے کہ دکاندار جلدی اسے خالی نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ اس کی دکان چل جاتی ہے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی جب تجارت چل رہی ہے وہاں پر، تو اب وہ جگہ بدلنا نہیں چاہتا نا، وہیں پہ رہنا چاہتا ہے۔ اگر مالک کی طرف سے پریشانی آئے گی تو پھر وہ دکان کے لیے اس کو مسئلہ ہو جائے گا بعد میں، تو وہ اپنی دکان کو وہاں سے ختم کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں لوگ کہ بعض جگہوں پہ پگڑی کہتے ہیں اسے، وہ بہت زیادہ رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ بھی سب سیکورٹی منی ہی ہے، حقیقت میں وہی ہے، لیکن انداز کچھ ایسا ہے بعض جگہوں پہ کہ یہ بہت زیادہ رکھتے ہیں اس کو، اتنی زیادہ جو ہے یہ لے لیتے ہیں کہ گویا جو مالک ہے نا، اس نے اتنا لے لیا کہ جتنا اس کے بنانے میں خرچ آتا ہے وہ لے لیا اس سے۔ اب اس کے بعد اس کو صرف کرایہ چاہیے، اور وہ کیا کرتا ہے، کیا کیسے کرتا ہے، اب وہ چلتا رہے گا اور کرایہ اس کو آتا رہے گا، اس کو اب کرایہ سے مطلب ہے۔ تو اب اس میں ہو یہ جاتا ہے کہ جس شخص نے لیا تھا پہلے کرائے پہ، کبھی وہ کسی اور کو بھی کرائے پر دے، یعنی ایک طرح سے وہ مالک جیسا بن جاتا ہے اس کا، بس کرایہ اصل مالک کو جاتا ہے اس میں۔
क्योंकि ये ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। ओनरशिप पेपर के लिहाज से देखेंगे तो उसी की रहती है, लेकिन जो आदमी वहां रहता है, और ये मालिक भी पहले से ये ख्याल करता है कि जल्दी खाली नहीं करते ये लोग, तो इसीलिए शुरू में ही अच्छी खासी रकम उससे ले लेते हैं कि अब ये खाली करेंगे नहीं, ये खुद नहीं किए तो किसी और को देते हैं, और ऐसे ही वो सिलसिला चलता रहता है। बहरहाल वो अपना जो है ये अलग अलग जगहों का ये अलग अलग जो निज़ाम है इसमें। अब शरीयत के लिहाज से ये मसला मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अब इस मसले को हम यूं शुरू करेंगे, जैसे मकान किराए पर लिया। अब मैंने ये मकान किसी के साथ पूरे एग्रीमेंट के साथ किराए पर ले लिया। अब मैं खुद उसमें नहीं रह रहा हूं, मैंने मैंने खुद किसी और को किराए पर दे दिया। जो हमारा किराया इनके साथ तय था, अब हम क्या करते हैं इसको कि किसी और को किराए पर दिया तो थोड़ा कम किराए पर दे दिया, ज्यादा किराए पर दे दिया। ज्यादा किराए पर देंगे तो हमें फायदा है, कम किराए पर दे दिया तो क्या करते हैं, उस जो सिक्योरिटी मनी होती है वो ज्यादा लेकर के फायदा उठाते हैं उससे। तो ये शक्लें भी हो जाती हैं। यानी असल मालिक से जिसने किराए पर लिया था मकान, उसने वो मकान किसी और को फिर किराए पर दे दिया। कभी ज्यादा किराया लेकर के भी दे देते हैं। ये कभी जो है इसमें गुंडागर्दी भी थोड़ी चलती है, थोड़ा दबंग किस्म का रहता है, तो ऐसे ही चलता रहता है। और वो किराया जो लगा बंधा पहले मालिक ने उसके साथ तय किया था, वो उतना ही उसको देता है, और बकिया अपने फायदा उठाता है। तो शरीयत के लिहाज से जिस शख्स के साथ ये किराए का एग्रीमेंट था, उसको अब ये हक नहीं बनता है कि किसी और को वो किराए पर दे। क्योंकि ये किराए पर देना हो या बेचना हो, जो भी होता है ना, अपनी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी में जिस अंदाज से भी डील करना हो, तो जो असल ओनर होता है उसी को ये हक होता है। जो किराए पर आया उसको ये हक नहीं होता कि किसी और को किराए पर दे। वैसे आजकल लोग बाकायदा कंडीशंस जो होते हैं किराए के लिए, जो एग्रीमेंट पेपर बनते हैं उसमें लिख भी देते हैं, इसको बाकायदा लिख भी दिया जाता है, और उस पर सिग्नेचर किए हुए होते हैं लोग कि किसी और को, ये किसी और को नहीं दे सकते उसे। तो इसकी पाबंदी जरूरी होती है। कोई अपनी गुंडागर्दी दिखाए तो अलग मामला, वो जुल्म कहलाएगा फिर। वो शरीयत के लिहाज से बहरहाल वो जायज तो नहीं है, वो जुल्म ही होगा। तो जुल्म को तो अब बहरहाल जालिम का अंजाम तो आप समझते हैं कि क्या है। अब वो शरीयत का जो हुक्म है वो अपनी जगह पर है। ये कल इससे पहले वाले दर्स में मैंने ये बताया था कि कभी जो किराएदार होता है वो खाली नहीं करता है, पैसा लेकर के फिर खाली पैसा मांगता है कि मुझे इतना पैसा दो तब मैं जगह छोड़ूंगा। तो वो सब मसाइल भी होते हैं। वो भी बताया मैंने कि शरीयत के लिहाज से ये सब हराम चीजें हैं। अगर एग्रीमेंट आपका पूरा हो चुका है, मुद्दत अगर एग्रीमेंट की पूरी नहीं हुई है, और वो निकालना चाहता है, तो जैसे टर्म एंड कंडीशन है कि 2 महीना पहले बताना है, अगर नहीं बता रहे हैं तो फिर आपको जो है ये अचानक जो है ऐसे खाली नहीं करा सकते आप, कहाँ जाएगा कोई भी शख्स। तो वो पाबंदी ओनर के ऊपर आती है कि वो पहले खबर देगा उसको, ताकि वो अपने लिए मुनासिब मकान तलाश कर सके हो। इसी तरीके से जो किराए पर लिया हुआ है घर, जब टर्म कंडीशन में है कि 2 महीने 3 महीने पहले वो मालिक मकान को खबर देगा छोड़ने से पहले, अचानक छोड़ रहे हैं, बगैर किसी साबिक नोटिस के छोड़ रहे हैं, तो वो टर्म के कंडीशन के लिहाज से 2 महीने का किराया वो पकड़ सकता है सिक्योरिटी मनी से। वो उसको हक बनता है, याद रखिए, और न ले अलग मसला है उसका। क्योंकि पहले बताना ये जरूरी था, वो कंडीशन के लिहाज से। कभी होता है कोई बीमारी, कोई चीज ऐसी आ गई जिसकी वजह से अचानक जाना पड़ रहा है, तो वहां मालिक मकान को भी, ये कुछ इंसानी हमदर्दी कहते हैं इसको, इंसानी हमदर्दी के लिहाज से वो वहां पर उसको
जो है उसका पैसे में से न काटे, ये एक अलग चीज होती है। लेकिन उसूली तौर पर शरीयत के लिहाज से भी उसको ये हक बनता है काटने का, और ये जुल्म नहीं कहलाएगा उस वक्त। तो बहरहाल ये जो है चीजें होती हैं कि छोड़ने वाले को भी ये होता है कि पहले से बता देगा ना, तो उसमें ये होता है कि वो अपना किराया किसी और को रखने के लिए वो ऐलान जो भी करना है वो कर देगा कि भाई मुझे ये किराए के लिए खाली है, ताकि लोग अगर आकर के वहां रहना चाहेंगे तो बातचीत उनसे हो जाएगी, तो वक्त पर उसका किराया जारी हो जाएगा। तो इस्लाम में एक बड़ा अहम कायदा है, ज़ाब्ता है, उसको हमेशा याद रखना चाहिए इस तरह के मामलात में, कि ला ज़रर वला ज़िरार, कि ना नुकसान उठाना होता है ना नुकसान किसी को पहुंचाना होता है। नुकसान को दूर किया जाता है जहां तक हो सके। तो नुकसान अगर मालिक मकान का हो रहा है तो उसे भी दूर किया जाएगा, नुकसान अगर किराएदार को हो रहा है तो उसे भी दूर किया जाएगा। अब दरर युजाल अरबी में कहते हैं, इसे कायदा है ये, कि जो नुकसान है उसे दूर किया जाएगा, उसे खत्म किया जाएगा। तो अचानक छोड़ के चले गए तो पता नहीं कब कोई आएगा, ये 1 महीना 2 महीने का किराया उसको नहीं, हो सकता है कि उसके घर का खर्चा इसी किराया पर ही चलता हो। तो ये चीज भी जो है जहन में रखना होता है, उसको भी नुकसान हो जाएगा ना अचानक चले जाएंगे तो। जैसे अचानक निकालेंगे बगैर किसी नोटिस के, तो सामान लेके आदमी कहाँ जाएगा, रोड पे आ जाएगा ना, तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो ये पाबंदियां करना जरूरी होता है, इसका ख्याल करना जरूरी होता है। इस सिलसिले की जुड़ी इसी से जुड़ी हुई एक और चीज बोल दूं आपको, कि अगर आपके पास मकान है, दुकान है, जमीन है, कोई भी चीज है, प्रॉपर्टी है, या आपके पास गाड़ी है, कोई चीज जिसको आप किराए पर देना चाहते हैं ना, तो किराए पर देना और उसका किराया लेना और उसे अपने ऊपर खर्च करना, उस किराए पर आपका गुजर बसर हो, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको आदमी सोचे कि नहीं, जो है किराए पर, बाज लोग किराए पर मकान देने को अच्छा नहीं समझते, उसकी जो आमदनी होती है उसको अच्छा नहीं समझते। तो यानी वो खोया कि भाड़ा खा करके रहते हैं, और इस तरह के बाद अल्फाज इस और लोग जो है कहते हैं ना कि समाज में ऐसे बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं उनको छोड़िए, हमारा इस्लाम क्या कहता है हमको ये देखना होता है। हमारा इस्लाम ये कहता है जायज है आपके लिए, ये आपकी चीज है, आप उसको किराए पर दे करके उससे फायदा उठा सकते हैं। तो मैंने कहा कि बाज लोगों का खर्चा उसी के ऊपर चलता है। अब वो 2 महीने 3 महीने किराएदार ना हो तो उसको भी तो मसला होगा ना, उसको भी तो नुकसान हो जाएगा ना उसका। तो इसीलिए इन सब चीजों की पाबंदी करनी होती है। और इसका लिए जो शरीयत के अंदर हुक्म है, वो हदीस है कि अल मुस्लिमून अला शुरूत, जो शर्तें जो कंडीशन है, जो भी हमने डील की है उस पे जो कंडीशन है, जो शर्त है, उसकी पाबंदी करनी होती है। ये मुसलमानों का तरीका है। मुसलमान उन शर्तों की खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं, ये उनका तरीका है। इसी किराए के ताल्लुक से एक बात और आपके सामने पेश करें, आज हमारे यहाँ जो बहुत कसरत से चीज होती है, ये किराया गाड़ी का हो या हमने गाड़ी किराए पर ली है या हम गाड़ी किराए पर देते हैं, इसके भी कुछ उसूल ज़ाब्ते हैं। और वो उसूल ज़ाब्ते वही आम जो शरीयत के उसूल हैं वही रहेंगे, लेकिन मैं वो पेश करना चाहता हूँ, जैसे और भी मसाइल में पेश करते हैं तो यहाँ भी पेश करना चाहता हूँ। कमाने का एक जरिया ये भी है, जरिया माश ये, कि आपने बहुत सारे ऑटो खरीद लिए, ऑटो, ऑटो रिक्शा, थ्री व्हीलर भी कह लेते हैं उसको। अब क्या करते हैं, हमारे पास पैसे थे तो हमने खरीद लिए। अब हम ये ऑटो किराए पर चलाने के लिए, जो है जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं उनमें से किसी को हायर करके कि उसको हमने ऑटो दे दिया। अब वो शख्स ये ऑटो चलाएगा, और उसकी जो आमदनी है मुतय्यन कर देते हैं आम तरीके से लोग इसको, ताकि वो ज्यादा सुस्ती ना करे ऑटो चलाने वाला, कि हर रोज
300 रुपये 500 रुपये उसको मालिक मकान, मालिक जो ऑटो का मालिक है उसे देना है। कुछ हफ्ते के लिहाज से भी रख सकते हैं, कुछ और महीने के लिहाज से भी, लेकिन यहाँ ज्यादातर वो जो है दिन के लिहाज से चलता है। जबकि इसकी शक्ल ये भी हो सकती है कि जितना भी उसने चलाया है, किराया हासिल किया है, आधा उसका और आधा मालिक का। जैसे हमने जमीन वगैरह के किराए की बात कही थी, तो आधा उसमें से वो जो है ऑटो का मालिक होने के लिहाज से वो लेता है। तो इसमें अगर कभी कम हुआ तो कम जाएगा, कभी ज्यादा हुआ तो ज्यादा मिलेगा। लेकिन जो पहली शक्ल है कि मुतय्यन कर देते हैं किराया, कि आपको पर डे 300 रुपये देना है ला करके हमें। आप ऑटो चलाए नहीं चलाए, कोई आपको ग्राहक मिला नहीं मिला, कोई किराए पर बैठा नहीं बैठा, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुतय्यन रकम आपको रोज इतना देना है। तो अब ये जो है, जो भी शक्ल हो, जब तय कर लिया है वो किराया उसका, जिसका ऑटो है वो उसको किराया ही कहेंगे फिर उसका। तो हमने उसको लिया, और दिन का किराया उसका क्या है, जो भी मुतय्यन था 300 रुपये 400 रुपये, वो मालिक को रोज उसको लाके देना है। शरीयत मना नहीं करती, इससे कोई बात नहीं। जब आपस में उसे तय कर लिया है, कंडीशंस जो भी हैं, जो भी उसके रूल रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करते हुए और पूरे उसके साथ उसको दे दें, लिखा पढ़ी करने के बाद, और उसके मुताबिक अमल करें, अच्छी बात है। ये चलना चाहिए इस तरह से। तो शरीयत ने इस कमाई से नहीं रोका, ये भी एक तरह से किराया पर देना और उससे फायदा उठाना है। इसमें ये होता है कि ये जो ऑटो लेते हैं चलाने के लिए किसी से, इनकी तरफ से बहुत ज्यादा झकमारी हो जाती है। अगर वो सीधा साधा आदमी है तो उसको डुबा देंगे, रोज ऑटो के इतने खर्चे निकाल देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। और थोड़ा करते हैं लोग, ये सारा काम होता है, लोग करते हैं, बहुत से लोगों की कमाई का जरिया यही है, मैं जानता हूँ ये। लेकिन वो कैसे लोग होते हैं, बड़े दबंग किस्म के, जिनको भी दिया है ना उनसे वसूल करना जानते हैं वो लोग, कैसे वसूल करना है। तो वहां तो चल जाता है ये, और चल रहा है, वो मसला नहीं है। ये मसला कहाँ फंस रहा है, सीधे साधे लोग कहीं काम में आकर के इस तरह से करना चाहते हैं। तो ये जो ऑटो पर लेते हैं लोग, यानी जो ऑटो ले लेते हैं किसी मालिक के पास से किराए पर, रोज उनको देना होता है, लेकिन वो तब नहीं देते हैं और बहुत सताते हैं, और रोज इतना खर्चा निकाल देते हैं ऑटो पर कि उल्टा उसको मालिक को जेब से देना पड़ता है, उसको कोई फायदा नहीं हासिल होता। अच्छे देखने में बड़े अच्छे लोग रहेंगे, दाढ़ी उड़ी भी रहेगी, लेकिन ये सब करते हैं। यही चीजें इस्लाम में जायज नहीं है। आज नेक लोगों के लिए पैसे कमाने के जो जरिए है ना, उसको इख्तियार करना क्यों मुश्किल हो गया है, इसीलिए मुश्किल हो गया। तिजारत करना मुश्किल हो गया उनके लिए। इस तरह से जो चीजें होती है कि अपना पैसा है तो इन्वेस्ट कर दिया, कुछ चीजें खरीद लिया और लगा दिया, ड्राइवरों को दे दिया, अपना वो कमाएंगे और उसमें से ला करके हमको देंगे, जो डेली जो है मुतय्यन करके रखा है। अच्छा कमाई का जरिया, आदमी जो है पैसा है तो ये सब चीजों के जरिए से पैसे कमा सकता है, लेकिन अमानतदारी ना होने की वजह से सीधे साधे लोग यहाँ पर कामयाब नहीं होते, उनको तो उल्टे अपनी जेब से जाता है पैसा। इसी तरह से ये मैंने ऑटो की बात की, सेम ये मसला, ये सब किराए के इसमें ही आता है असल। अगर फोर व्हीलर ले लिया, किराए की जो टैक्सी होती है, वो खरीद लिया, अपने नाम से पैसे थे, इन्वेस्ट किया, एक 10 जो है गाड़ियां खरीद ली, 10 ड्राइवरों को दे दिया, वो कमाएंगे उससे, रोज का उनसे एक भाड़ा मुतय्यन होता है किराया, कि जो है आपको गाड़ी के पीछे मुझे रोज इतना ला करके देना है। तो इसमें ये होता है कि आदमी उसी लिहाज से मेहनत करता है,
सुस्ती नहीं करता है कि भाई इतना तो देना है पहले मालिक को, उसके बाद जो कमाई है वो मेरी है। तो मेहनत करता है आदमी, उसमें कोशिश करता है, और सामने वाले को भी इससे कुछ फायदा होता है बहरहाल। तो उसकी एक कमाई का ये जरिया बन जाता है। अमानतदारी के साथ करें ये, शरीयत ने इससे मना नहीं किया। और जो भी एक मुनासिब किराया हो सकता है, एक दिन का, एक गाड़ी का, एक ऑटो का, वो मुतय्यन करके आदमी ले भी, तो ये कोई शरीयत के अंदर पाबंदी इसकी नहीं है। किसी को मुफ्त ही में दे दे, उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो ले जाओ भाई, आप चलाओ, आप कमाओ इससे, आपकी जरूरत पूरी हो जाए, अगर उसके बाद कुछ और होता है तो ला के दो मुझे, नहीं तो पहले अपनी जरूरत पूरी करो। तो खैर फिर वो कभी देगा नहीं, तो ये मदद के तौर पर कर रहा है, एक अलग मसला है। हम वो बहस, वो इंसानी चीजें हैं, इंसानी हमदर्दियां हैं, और दूसरे की मदद करने का जज्बा है, वो कोई भी कर सकता है, और ये एक अच्छी चीज है। लेकिन हम ये है कि जो जिसने पैसा लगाया, पैसा इन्वेस्ट किया है, वो फायदा उठाना चाहता है, तो उसको वो फायदा उठाने का हक है, और वो किराया ले सकता है, डेली बेस पर भी ले सकता है, जैसे भी चाहे, हफ्ते के लिहाज से लेना चाहता है तो उसके लिहाज से भी ले सकता है। इसमें तो आम तरीके से महीने वगैरह का हिसाब नहीं चलता है। तो ये जो है, ये भी किराए की एक शक्ल होती है। मैं इसमें वो वाली बात नहीं आती है, जो आप ऑटो पर बैठते हैं और जो मीटर आया वो किराया आप देते हैं, वो ये किराए की एक अलग बहस होती है। जो बस का किराया है, ट्रेन का किराया है, ऑटो का किराया है, जो आप बैठते हैं, फायदा उठाते हैं, वो तो जो किराया मुतय्यन होता है, वो किराया आप देते हैं, वो एक अलग चीज हो जाती है, वो इसमें नहीं आती है। लेकिन वहां पर भी जाब्ता वही है, जैसा वहां का उर्फ है, जैसा उसूल और जाब्ता है। और जो किराया मुतय्यन होता है, इसमें आम तरीके से किराए मुतय्यन होते हैं, तो वो किराया जो है, जो भी जाएगा वो उसको देना होता है। यहाँ ऑटो वाले कभी कभी गलती करते हैं कि वो आपसे किराया ज्यादा मांगते हैं। ये हराम है उनके लिए, ये उनके लिए हराम है। कहीं जाने के लिए बोलेंगे, नहीं नहीं जाएंगे साहब, जाएंगे तो डबल किराया लेंगे, या जो है 1.5 जो है, जो मीटर आएगा उससे, मीटर से बढ़ के किराया लेना उनके लिए हराम होता है, याद रखिएगा। ये कमाई हराम हो जाती है। कोई शख्स ये ना कहे इसमें कि भाई ये उसको हक है, क्यों जो है, कोई भी चीज जो है, हम ये वहां जाना है, उसको हक है जितना चाहे किराया तलब करे। तो यहाँ हक नहीं रह जाता है, क्योंकि किराया यहाँ मुतय्यन कर दिया गया। ट्रेन का किराया मुतय्यन है, अगर कोई आपसे ज्यादा मांगे तो आप नहीं कहेंगे कि कहाँ से आप मांग रहे हो, तो किराया मुतय्यन है ये, पहले से इसको मुतय्यन कर दिया गया है किराया। बस का किराया मुतय्यन है, ज्यादा मांगने का हक बाद में नहीं रह जाता है। इसी तरह से ये किराया मुतय्यन है, मीटर के लिहाज से जाना है, और उसको हक भी नहीं होता है मना करने का। दूसरी जगहों पर जाएंगे जहां पर ज़ाब्ते की पाबंदी होती है, हुकूमत की जो कवानीन है उसकी पाबंदी होती है, तो आप सिर्फ बैठ जाइए और उसको बोलिए कि फलां जगह चलो। वो मना करने का हक भी नहीं रहता कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो साहब बड़े नवाबी के शान रखते हैं, नहीं जाएंगे। उनको जो परमिट मिलती है, इसकी परमिशन जो मिलती है ना, वो इसी लिहाज से मिलती है कि आपको ये सब चीजों की रूल्स की पाबंदी करनी होगी, और उसी शर्त के साथ वो लेते हैं ये, उनको लाइसेंस मिलता है इस शर्त के साथ। वो शर्त की खिलाफ वर्जी करते हैं, इसीलिए कहा कि वो जायज नहीं होता है। और अल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम, कायदा यहाँ पर वही है कि मुसलमान अपनी शर्तों के साथ होता है। जो भी शर्त है, आपने जब रूल रेगुलेशन के लिहाज से आपने सिग्नेचर कर रखा है कि जो भी ऑटो के लिए जो उसूल बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आप उसे फॉलो करेंगे। अब आप उसके खिलाफ चले गए, तो ये शरीयत के अंदर ये चीज जायज नहीं होती है। तो बहरहाल ये बड़ा अजीब सा लगता है कि आराम से बैठे रहते हैं, नहीं जाएंगे बोलते हैं। भाई आपके पास कमाई का एक जरिया आया और छोड़ते हैं उसको, नहीं नहीं चाहिए। किसी एक को मुर्गा बना करके उसको लूटना चाहेंगे, कोई मिल गया तो जो है अच्छा लूट लेना चाहेंगे। लेकिन जो कमाने का सही तरीका है,
ये ऑटो वगैरह जो लोग चलाते हैं, अगर ये सही से काम करे ना, तो इनको घर के खर्चे के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमने बहुत से लोगों को देखा कि ये ऑटो चलाने वाले, इस तरह के लोग भी जो है ज़कात की या दूसरे और मदद के लिए इन बाकायदा जो है मुख्तलिफ हमारी जो तंजीमें वगैरह हैं, इस्लामिक सेंटर्स जो कहलाते हैं, उनकी तरफ से आते थे ऐलान कि वो उनका जो है, ये उनके वालिद ऑटो ये हैं, ड्राइवर हैं ये, वो भी कमाना चाहें तो अच्छी खासी इसमें कमाई होती है। लेकिन आराम करना चाहते हैं तो फिर उसका कोई हल नहीं है दुनिया के अंदर। सुस्ती का कोई हल नहीं, सिवाय इसके कि वो सुस्ती को छोड़ेंगे, तभी जाकर के चीज होगी। तो ये भी किराए की, लेकिन असल हमारे इसमें ये चीज नहीं आती थी। कोई चीज आप किराए पर देते हैं तो किराया लेने का हक, और उसे आप खर्च करते हैं अपने ऊपर, अपने जो है घर वालों पर, इसमें शरीयत के अंदर कोई कबाहत नहीं है, कोई मुमानत नहीं है। उसके जो उसूल हैं, जो टर्म और कंडीशंस होते हैं, उसकी पाबंदी बहरहाल करनी होती है। और हर चीज क्लियर रहनी चाहिए। जब आप देते हैं तो उसी वक्त क्लियर कर दीजिए कि ये इतना देना है, अगर ये खराबी आई तो तुमको संभालना है, ये आया मसला तो मैं देखूंगा। वो पूरी जो भी चीजें होती हैं, वो बाकायदा जो है बहुत वजाहत के साथ इसे पहले से तय होना चाहिए, और उसकी खिलाफ वर्जी फिर नहीं करना चाहिए। उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे फिर जुल्म में आ जाएगा वो। किराए के ताल्लुक से जो ये बातें चल रही हैं आपके सामने, जो चीजें हो रही हैं, इसमें बाज चीज ऐसे जो है काम होते हैं कि वहाँ वो शख्स जो किराए पर ले रहा है, वो फौरी तौर पर 11 महीने या कहिए कि 1 साल 2 साल के अंदर अगर खाली कराना चाहेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो वो शुरू में ही 5 साल 10 साल की शर्त लगा लेते हैं कि इतने साल से पहले आप मुझे इसे छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, एक मरतबा मैंने किराए पर ले लिया तो ये कंडीशन है, हक है ये उसको, उसने ये रखा और मालिक ने उसकी मुआफकत कर लिया, हाँ ठीक है मैं इतने साल के लिए दे रहा हूं, तो फिर उसको उससे पहले निकालने का हक नहीं बनता है। फिर यहाँ ये नहीं आप कहेंगे कि वो तो मालिक है, वो किराएदार है, जब चाहे निकाल दे, तो ये मसला नहीं होता है। अब इस वक्त जो कंडीशन थी ना, जो उसकी पाबंदी करना जरूरी हो जाता है, उसका ख्याल किया जाता है। तो ये सब चीजें लोग करते हैं। अभी कुछ कवानीन ऐसे होते हैं बाज जगहों पर, इसी से जुड़े हुए चंद मसाइल हैं कि भाई 10 साल रह गए तो फिर जगह खाली नहीं करेंगे, मालिक मकान का हक खत्म हो जाता है और ये अब किराएदार का हक शुरू हो जाता है। इस्लामी शरीयत में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिंदगी भर रह लोगे तब भी वो ओनरशिप जो असल मालिक है उसी की रहेगी। किराएदार की कभी भी उसमें ओनरशिप आने का सवाल ही नहीं उठता। और कभी भी जब उसे खाली करने के लिए कहा जाएगा, टर्म और कंडीशंस की पाबंदी करते हुए, जो पहले एग्रीमेंट था उसकी पाबंदी करते हुए, तो उसको मना करने का भी हक नहीं पहुंचता है कि मैं इतने साल रह गया हूं, अब मैं नहीं खाली करूंगा। खाली न करने का ऐसा कुछ भी शरीयत के लिहाज से, इस्लामी शरीयत के लिहाज से, यह हक उसको नहीं पहुंचता है। जो मालिक है वही मालिक है। कभी अगर दुकान को तोड़ के दोबारा बनाने का मसला आया, या अक्सर लोग दुकान खाली नहीं करते हैं, तो कभी कभी जो मालिक होता है असल, वो कुछ ना कुछ ये लगा लेता है कि भाई इसमें मुझे कुछ ये काम कराना है, या मुझे थोड़ा ये बनाना है, और इसमें ठीक है मैं आप ही को दे दूंगा बाद में करने के बाद, लेकिन फिलहाल आप उसे खाली कर दीजिए। तो कुछ न कुछ तगड़मबाजी करके कभी खाली करवाते हैं, ये एक अलग चीज है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं जो मसला पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि एक शख्स एक जगह पे दुकान उसको किराए पर थी और उसमें रह रहा है, उसको जो है वो किराए पर लिए हुए किराया भी अदा करता है। लेकिन अब वो जो मकान का मालिक है, उसे तोड़ के दोबारा, दुकान का जो मालिक है उसे तोड़ के दोबारा बनाना चाहता है।
تو اب اس نے جو ہے اس سے خالی کرایا اور توڑ کے، اور یہ کہا ہے کہ دوبارہ میں تمہیں دوں گا، یہ نہیں بھی کہا ہو تو دوبارہ جب اسے بنائے گا، وہ دکان دوبارہ تیار ہوئی، تو چونکہ ایک شخص جو پہلے سے وہاں دکان کر رہا تھا، اس کو ایک حق حاصل ہوتا ہے، اس حق کو کہتے ہیں اولیت کا حق۔ یعنی بہت سے لوگ کرائے پر چاہ رہے ہیں اس کو لینا، تو مالک، دکان کے مالک کو چاہیے کہ جس شخص کے پاس وہ پہلے دکان تھی اس کا حق پہلے بنتا ہے، اور وہ بھی چاہ رہا ہے، تو پھر وہ آگے بڑھے گا اور اس کو بھی یہ حق حاصل ہوگا، اور مالک وہ جو ہے اس کے حق میں اسی کو کرائے پر دے دے، تو جو ہے تو وہ جو ہے کر لے گا وہ۔ تو یہ جو ہے مسئلہ ہے یہاں پر حاتم جو ہے، تو یہ چیز یہاں اس کرائے کے معاملے میں یہ تھوڑا سا رہتا ہے، لیکن یہ کوئی وہ منع کر سکتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے، اس کو حق ہے یہ۔ لیکن اگر وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو دوں گا، تو پھر ایک مسلمان اپنے وعدے کی پابندی کرتا ہے۔ نہیں کیا تھا وعدہ، تو ایک میں نے کہا کہ اولیت کا حق ہوتا ہے کہ اس کو پہلے دینا چاہیے، جو آدمی پہلے سے یہاں دکان کر رہا تھا۔ اگر تعلقات اچھے نہ رہے ہوں، پیچھا چھڑانے کا مسئلہ رہا ہو تو الگ مسئلہ ہے، تو ایک الگ چیز ہو گئی ہو۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کی اس پورے مسئلے کو لے کر کے، اور یعنی یہ کرائے پر دینے اور جو ہے لینے کے تعلق سے، یہ زمینوں کا کرایہ تھا، سامان کا کرایہ تھا۔ آج ایک اور چیز ہو گئی ہے جو بڑی کثرت سے کرائے پر ملتی ہیں وہ چیزیں، اور وہ متعین ہوتی ہیں، مشینیں کرائے پر لینا۔ جیسے اب بلڈنگ بنا رہا ہے کوئی، تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ مشینیں ہوتی ہیں، وہ کرائے پر ملتی ہیں۔ وہ آدمی کہاں ہر آدمی رکھے گا اس کو، تو کیا کرتے ہیں اس وقت اس کو کرائے پر لے لیا۔ جیسے لفٹ ہوتی ہے اس، تو جب کئی منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں تو نیچے سے سامان اٹھا کر کے اوپر لے کے جانا، تو مزدور لے کے جائے تو بہت ٹائم لگتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں ان مشینوں کے ذریعے سے سامان کو اوپر چڑھا لیتے ہیں۔ یہ کرائے پر ملتی ہیں مختلف جگہوں پہ، کرائے پر لے لیا اور لا کر کے اس کو ایک دن کا کرایہ، 2 دن کا، 3 دن کا، جو بھی ہوتا ہے ان کا، ایک دن کا کرایہ، 2 دن کا کرایہ جو بھی ہے یہ متعین رہتا ہے، تو اس کے لحاظ سے وہ کرایہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو مشینیں کرایہ پر ملتی ہیں، اس کے بھی کچھ ٹرم کنڈیشن ہوتے ہیں، ان کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ جیسے اگر وہ کام کرتے ہوئے مشین خراب ہو گئی، تو اس کو صحیح کرانے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ جو کرائے پر لے کے آیا تھا اس کی ہوگی، یا جس کا جو مالک ہے وہ ذمہ دار ہوگا اس کا؟ یہ کیا ہوتا ہے جب عام حالت پہ جو طریقہ ہے استعمال کرنے کا اسی طریقے سے استعمال کیا، لیکن وہ مشین تو خراب رہی ہوگی پہلے سے، وہ خراب ہوئی، تو یہ بھی ٹرم کنڈیشن وغیرہ میں یہ چیزیں رہتی ہیں کہ اگر ایسا ہوا، یا اگر نہیں ہے پہلے سے بیان نہیں کیا ہے، لیکن عرف کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ اگر مشین میں خرابی ہوئی تو جو مالک ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، جو کرایہ پر لے کر گیا ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اس کو صحیح کرانے کی ذمہ داری مالک کی ہوگی۔ کسی طریقے سے کبھی ڈرل مشین ہوتی ہے، کہیں سوراخ کرنا ہے، کچھ توڑنا ہے، تو بہت سارے لوگوں کے پاس تو اپنی رہتی ہے، خریدے ہوئے رہتے ہیں، لیکن بعض لوگ کرائے پر لا کر کے کام چلاتے ہیں، یہ سب چیزیں کرائے پر ملتی ہیں۔ تو کسی نے کرائے پر دینے کے لیے یہ چیزیں دکان کھول کے رکھی ہے، وہ کرائے پر دیتا ہے مشین ہے، یہ جائز ہے، کرائے پر لے کے آئیے، استعمال کیجئے، دن کے لحاظ سے جو کرایہ بنتا ہے وہ کرایہ دینا ہے۔ اسی یعنی کرائے پر جو ہے جو چیزیں لوگ لاتے ہیں اسی میں سے یہ جب بلڈنگیں وغیرہ بناتے ہیں، تو بلڈر وغیرہ کے تو کچھ چیزیں اپنی ہوتی ہیں، لیکن جو چھوٹے موٹے کام کرنے والے ہوتے ہیں
तो कभी ऐसा होता है कि जो बल्लियां वगैरह लगाते हैं या शटरिंग वगैरह जो करते हैं, तो ये सब सामान भी किराए पर मिलते हैं। तो अब एक जगह पे कितने दिन तक वो रह सकता है वो पता रहता है। तो उतने दिन तक के लिए वो जो सामान लेकर के आए, वो शटरिंग वगैरह किया और जो है वो अपना काम चलाए उससे, उसका किराया उतने दिन तक का एक ही साथ मुतय्यन होता है। तो उसी लिहाज से वो किराया देना होगा। कुछ जो है उर्फ में कुछ चीजें होती हैं कि हाँ थोड़ी बहुत उसको कहीं कटिंग वटिंग, अब जाहिर सी बात छोटे हो गए ना, वो जो बड़ा था तो छोटा हो गया, कहीं कटिंग करना पड़ गया, कहीं कुछ और करना पड़ गया, तो थोड़ी बहुत तो गुंजाइश हो तो वो कर सकते हैं। अगर मना कर दिया कि आप इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे लेके जा रहे हैं वैसे ही ला करके आपको वापस करना है, तो जिस तरह की भी कंडीशन हो सो होती हैं उसकी पाबंदी करनी होगी, उसी के लिहाज से उसको इस्तेमाल किया जाता है। जायज है, शरीयत में कोई मसला नहीं है इसमें भी। और इस तरीके से अगर कोई कमाई करता है ये चीजें रख करके, किराए पर दे करके उसका किराया हासिल करता है और वही खाता पीता है, तो वो भी ठीक है। बात जगहों पर बर्तन किराए पर दिए जाते हैं, यानी पार्टियों वगैरह के लिए जो बर्तन वगैरह की जरूरत होती है तो वो किराए पर देते हैं। कुर्सी है, फर्नीचर्स भी होते हैं उसके अंदर, और ये सब चीजें भी, तो ये बर्तन वगैरह कराकरी जो कहते हैं आप, वो किराए पर देते हैं और वो किराए पर दे करके उसका किराया हासिल करते हैं। इसके अंदर भी जो टर्म कंडीशंस हैं, कोई चीज टूट गई, कुछ वो हो गया, कोई प्लेट टूट गया, वो जिम्मेदारी किसकी होगी फिर, तो वो सारी चीजों की पाबंदी करते हुए किराए पर देना भी और वो किराया हासिल करना भी दोनों जो है जायज है। और जैसी कंडीशन होती है उसका ख्याल करना होता है। जैसे बस चीजें होती हैं, वो किराए पर लेके आए थे, उसमें पकाना रहता है, पकाने के बाद फिर वापस करना, खाना खाने के बाद प्लेटें वापस करनी है, तब ये धो करके जिस शक्ल में लेके आए थे उसी शक्ल में देना है। या धोने होने की जिम्मेदारी किसकी है, ये उर्फ के लिहाज से भी ये चीजें मुतय्यन होती हैं। नहीं तो बाकायदा वो चीज जाहिर कर देनी चाहिए कि आप जैसे लेके जा रहे हैं इसी शक्ल में आपको ला करके वापस हर्जाना देना पड़ेगा, यानी वो फाइन जो उसकी होगी वो आपको देना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है आपके सामने आई, जो है ये चीजें जो है किराए के लिहाज से ही है, ये सब चीजें जो है जायज है, कोई मसला नहीं। टेंट होता है आजकल, देखेंगे कि मुख्तलिफ घरों के सामने मुनासिबत के लिहाज से टेंट लगा देते हैं, तो ये टेंट भी सब किराए पे आते हैं। ये भी दुकानें लोग खोल के रखते हैं टेंट किराए पर देने के लिए, उनके पास वो सब चीजें रहती हैं, लोग रहते हैं, उसको लेकर के पहुंचाते हैं, फिर वापस लाते हैं और उसका किराया हासिल करते हैं। ये सब चीजें भी किराए पर देना या किराए पर लेना ये सब जायज है। शहरों में ये भी हो जाता है, कभी ज्यादा मेहमान आ गए तो सोने के लिए बिस्तर जो मैट्रेस वगैरह होते हैं, तकिया, ये सब चीजें, चादरें वगैरह, तो बहुत सारी जगहों पर ये सब भी किराए पर मिलती है। तो अपनी जरूरत के लिहाज से किराए पर लेकर इसको ये भी दुकान खोल के बैठ सकते हैं कि किराए पर आप ये चीजें देते हैं लोगों को। तो जब आपने ये कर लिया तो ये किराए पर देना भी और उसका किराया हासिल करना, उसकी जो भी कंडीशंस, जो भी शर्तें, जो भी टर्म कंडीशन जो कहते हैं आजकल, जो भी है, चाहे उर्फ के लिहाज से हो या मुतय्यन हो, आप बयान कर दें पहले देने से पहले, दोनों सूरतों में जैसे उसकी चीजें होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उसके मुताबिक ये जो है फायदा हासिल करना या किराए पर इस तरह से चीजों को देना, सामने वाला उससे फायदा उठाए, ये शरीयत के लिहाज से मना नहीं है, ये भी जायज है। तो ये आपके सामने जो है किराए पर जो है चीजों को, यानी ये सब कारोबार अगर आप करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि इसको ये पैसे कमाने के जरिए होते हैं ये, तो करना चाहते हैं तो आप खोल करके रख सकते हैं, सामान खरीद करके। पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको पैसा जो है, वो सामान खरीद करके अपने पास रखें, लोग किराए पर लेने के लिए आएंगे, आप उनको किराए पर दें और किराया उनसे हासिल करें।
تو یہ سب چیزیں جو ہے صحیح ہیں، جائز ہیں، کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے، شریعت کے لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ تو یہ کرائے کے جو ہے چند جو اصول تھے، ضابطے تھے، جو باتیں تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اور اس میں مین چیز وہی ہوتی ہے کہ معاملات بہت کلیئر ہونے چاہیے، بہت واضح ہونے چاہیے، اور کسی طرح کی خیانت جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ وہ خیانت تو کسی بھی چیز میں جائز نہیں، وہ عام جو ہے اصول ہے شریعت کا، اسی عام اصول ضابطے کی بات کر رہا ہوں کہ بہرحال امانت داری کا پورا پورا خیال ہونا چاہیے، اور زبان کا، اور زبان کی جو، اور جو وعدہ جو ہوتے ہیں زبان سے، ان سب کی پابندی کا، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ شریعت کے جو جنرل جو ہے احکام ہیں، عام باتیں ہیں، وہ سب ان سب جو ہے معاملات میں بھی آئیں گی وہ اپنی جگہ پر۔ لیکن یہ کرائے پر دینا لینا ان چیزوں کو، یہ سب کی سب جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ہے چند چیزیں، چند اصولی جو باتیں تھیں کرائے کے تعلق سے، میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ جو بھی چیزیں ہم نے پیش کی، یہ سب جو ہے کرایہ، اس کا جو تعلق تھا یہ چیزوں سے تھا۔ اب انسانوں کو کرائے پر لینا یعنی اجرت پر، انہیں ہائر کر لیا جائے اور ان کی جو اجرت ہوتی ہے ان سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کا جو بھی کام ہے، صلاحیت، جو آج کل آپ امپلائیز کہتے ہیں یا امپلائر کہتے ہیں، جو ابھی سب نظام جو پایا جاتا ہے کہ کوئی مالک ہوتا ہے دوسرے کو اپنے یہاں اجرت پر رکھتا ہے، کام لیتا ہے، اس سے کام کر کے اس کی مزدوری دیتا ہے، تو یہ بھی ایک بحث ہے، یہ بھی، اس کا بھی تعلق اجارہ سے جب شریعت کے اندر بیان کرتے ہیں تو یہ بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے یہ ہوگا، لیکن بہرحال ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو آگے کے درس کے لیے رکھیں، یہ پوری ایک بحث ہوگی آپ کے سامنے، یہ امپلائیز کے جو رول ہوتے ہیں، امپلائر کے تعلق سے جو شریعت کے احکام ہیں، اور اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ سب جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے جو ہے پیش کریں گے آگے کے درس میں۔ لیکن آج بس یہ چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہو، کوئی ایسی چیز ہو، تو آپ کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس ٹائم ہے آج آپ سوال کر سکتے ہیں، جی۔ السلام علیکم شیخ، میرا وعلیکم السلام۔ میرا نام فیضان ہے، اور میرا اس میں ایک سوال ہے۔ آپ نے ابھی جیسے بولا کہ اگر کوئی آٹو والا زیادہ رینٹ لے گا تو اس کے لیے وہ حرام ہے۔ تو ہوں میرے دو سوال ہے، ایک تو اگر مجھے پتا ہے کہ وہ زیادہ لے رہا ہے تو اس میں ہوں مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے حرام ہے، تو اس میں میں کچھ اس میں میرے کو کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ رینٹ کا حساب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک ایک گھر پہ ہی کوئی 20,000 لیتا ہے، سیم گھر پہ ہی کوئی 22,000 لیتا ہے، کیا وہ بھی اس کے حرام میں آ جائے گا کہ اگر کوئی مطلب جی، یہ ضرورت سے مسئلہ زیادہ؟ جو آپ کا تھا دوسرا، وہ میں نے پیش کیا تھا پہلے، کہ ہم جو ہے کرایہ، جیسے اس مکان کا ایک کرایہ ہوتا ہے 22,000 مان لیجئے، لیکن ہم نے کسی ٹیننٹ کو جو اس کو ہم پسند کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو کیا کیا، ان سے چلو آپ کو ہم 20 ہی لیں گے، دے دیا، جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے۔ یعنی یہ آپ کو حق ہوتا ہے کہ کسی کو کرایہ کم کر کے دے دیں، اپنا مکان یا اپنی دکان، اس میں کوئی مسئلہ، لیکن وہ کرایہ ہی ہونا چاہیے بس، یہ ہم نے اس کی وضاحت پچھلے درس میں کر دی تھی، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ بعض اچھے لوگ مل جاتے ہیں کرایہ دار، تو مکان مالک یہ سمجھتا ہے کہ بھائی کسی کے ساتھ تک جھک کرنے سے بہتر ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ تھوڑا کم ہی کرایہ ملے لیکن مستقل ملے، صحیح ٹائم پر ملے، اور ٹیننٹ کے ساتھ جو لفڑا رہتا ہے یا جو تک جھک رہتی ہے اس سے ہمیں چھٹکارا رہے گا۔ تو عافیت کی زندگی ہر کوئی چاہتا ہے، کمفورٹ زون میں رہنا ہر کوئی چاہتا ہے، تو یہ اس کے لیے گوشہ عافیت ہے، کمفورٹ زون ہے، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، اس کے لیے وہ تھوڑا کم پر بھی دے دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ۔ اب یہ جو مسئلہ کرائے والا تھا کہ وہ مانگتا ہے آپ سے زیادہ،
میں نے جو زیادہ کی جو بات کہی نا، اس میں دو طرح کی بات ہے۔ وہ بات، ایک بات میں نے ذکر نہیں کی، کبھی کیا کرتے ہیں یہ آٹو والے، میٹر کو ہی خراب کر لیتے ہیں۔ تو ڈیجیٹل جو آتے ہیں اس میں تو تھوڑا ان کے لیے چانس کم ہوتا ہے، لیکن ابھی تو ہر چیز میں آپ کر ہی سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے جو کمپنیاں بناتی ہیں، وہ اس کے چور دروازے بھی لوگوں کو بتا دیتی ہیں۔ تو بہرحال وہ شروع شروع میں شاید پریشانی رہے، لیکن بعد میں وہ سب میں ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ میٹر کو تیز کر کے رکھتے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں، اصل میں آپ کا وہاں میٹر جیسے مان لیجئے کے لحاظ سے صحیح معنی میں 70 روپیہ دکھانا چاہیے، لیکن اس میں وہ 100 روپیہ دکھائے گا۔ تو یہ تو خیانت ہوتی ہے، یہ دھوکہ دھڑی ہے یہ، اور حرام ہے، اس کو تو کوئی، اور وہ جو بھی کمائے گا وہ، لیکن اس میں آپ نہیں جانتے، آپ دھوکے میں آ گئے تو آپ نے اس کو دے دیا جو بھی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کے اوپر نہیں آئے گا، لیکن سامنے والے نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور قیامت کے دن وہ اس پر پکڑا جائے گا، اس کی پکڑ ہوگی، اس کی یہ جو ہے کمائی حرام کی ہے وہ۔ تو کبھی یہ کرتے ہیں، پچھلے زمانے میں زیادہ تھا، ابھی بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اپنے الگ الگ یہ ہے۔ دوسرے کیا ہے کہ یہ بھی کرتے تھے پہلے کہ کوئی اجنبی آدمی ہوتا تھا جو دوسرے شہر سے آیا ہے، اس کو راستے کا علم نہیں ہے، تو کیا کرتے تھے، تھوڑی دور جو جانا ہے تو گھما کر کے ذرا دور کے راستے سے لے کے جائیں گے، تاکہ میٹر کا پیسہ بڑھ جائے۔ یہ خیانت میں، یہ دھوکہ دھڑی میں چیزیں آتی ہیں، تو اس کے لحاظ سے یہ چیز حرام ہے۔ حالانکہ میٹر کے لحاظ سے جو آیا آپ نے وہی لیا، اس لحاظ سے تو وہ صحیح ہے، لیکن جو سامنے والے کو آپ نے دھوکہ دیا نا، تو اسلام میں دھوکہ جائز نہیں۔ من غش فلیس منا، جو غش یعنی چیٹنگ کرے، چیٹر یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہدایت ہے یہ، تو اس لحاظ سے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اب جو ایک مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 1.5 لوں گا میٹر کے لحاظ سے، جبکہ وہ رات کے لیے الگ ہوتا ہے یہ قانون، وہ اپنی جگہ پر وہ نظام کے ساتھ ہے، لیکن دن کے اندر جو قانون ہے اس کے لحاظ سے اس کو جتنا لینا چاہیے تھا، اس کہتا ہے کہ 1.5 لوں گا، یا اس کے ڈبل مانگتا ہے، اور یہ کہے گا کہ نہیں مجھے وہاں سے واپسی کی سواری نہیں ملتی ہے، اس لیے یہ جو ہے واپسی کی سواری، یہ وہ سب چیزوں کا خیال کر کے حکومت جب یہ ریٹ متعین کرتی ہے تو وہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کرتی ہے۔ یہاں تو یہ بات وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے واپسی میں سواری نہیں ملے گی، بھائی تھوڑی دور نہیں ملے گی کوئی مسئلہ نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے امانت داری کے ساتھ جاؤ تو پہنچتے ہی وہیں کوئی سواری مل جائے، یہ آپ کی قسمت کے اوپر چیز ہوتی ہے، آپ کی تقدیر کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اسی کہیں جب قریب میں جانا ہوتا ہے اور منیمم چارج جب گورنمنٹ متعین کرتی ہے، تو وہاں تو یہ نہیں کہتا آٹو والا کہ بھائی جو ہے میں تو تھوڑی دور ہی لے کے آیا، 10 ہی روپیہ بنتا ہے، مجھے 10 ہی روپے دو آپ۔ وہ جو ہے وہاں پہ آپ سے یہی کہے گا کہ قانون دکھا دے گا آپ کو کہ منیمم چارج یہی ہے بھائی، 30 روپے سے کم نہیں ہوتا، اور آپ دیتے ہیں 30 روپے۔ تو اس میں ہر طرف چیز ہوتی ہے نا، تو اگر آپ کو نہیں بھی ملے گا تب بھی وہ چیز قانون کے اندر اس کی ان سب چیزوں کا لحاظ ہوتا ہے، اور اسی کے لحاظ سے آپ کی اجرت متعین کی جاتی ہے۔ اس کو یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ میٹر سے زیادہ وصول کرے۔ اب آپ جو ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ جو ہے چیزیں ہو جاتی ہیں، اب آپ کو جانا تھا، آپ کے لیے اور کوئی بھی سادھن نہیں تھا، ہم تو ایسے آٹو والے کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے آٹو کا انتظار کریں گے، میں اپنی بات بول رہا ہوں، لیکن آپ کو کہیں جلدی تھی اور آپ چلے گئے، اور جیسا اس نے مانگا آپ نے دے دیا، تو آپ تو گنہگار نہیں ہوں گے، اصل میں وہ اس کی وہ کمائی حرام ہوتی ہے، اور آپ کو اس کو سمجھانا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ حرام کمائی ہو جاتی ہے۔ حلال طریقے سے کماؤ گے اللہ تعالیٰ برکت دے گا، جو اس طرح سے کماتے ہیں نا ان کی کمائی میں بھی برکت نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ آٹو والے پریشان ہی رہتے ہیں، تو کبھی مجبوری میں آپ چلے گئے تو مسئلہ آپ کا دوسرا ہو گیا۔ نہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے اور بول دینا چاہیے کہ بھائی اگر آپ کو یہ تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس نہیں، کسی اور آٹو والے کو۔
लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी ऑटो वाला तैयार नहीं होता है, तो मजबूरन आपको उस उतने पैसे पे जाना पड़ जाता है। बाज लोग यहाँ पर थोड़ी शेखी भी दिखा देते हैं। शेखी का मतलब बताऊं आपको, कि वो पहुंचे, किराया भी आया मीटर का, जितना किराया आया 100 का नोट दिया, बकिया तुम रख लो जाओ। भाई ठीक है, अच्छी बात है ये, आप हमदर्दी की बुनियाद पर अगर देते हैं, मदद के जज्बे से, इसमें कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन इससे मसला क्या होता है कि वो हर एक से यही उम्मीद करने लगता है। तो हर कोई आपके जैसा मालदार हो कोई जरूरी नहीं ना है। आपको मदद करना है, अलग से दी मदद कीजिए, लेकिन बखिया वो रख लीजिए वाला जो मसला होता है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये भी करते हैं ऑटो वाले, कि चेंज नहीं है साहब। भाई आप ऑटो वाले हो ना, तो आपको चेंज लेके चलना चाहिए, क्योंकि हम जाएंगे किसी जगह पर तो कितना होगा, 70 होगा, 72 होगा, 73 होगा, ये तो पता नहीं है ना कि वो चेंज लेकर के जेब में चलेगा वो, उसको तो पता नहीं है। और आपको ये पता है कि जो है, जो मीटर आएगा तो कुछ भी आ सकता है, तो हमको पैसे वापस करने होंगे। तो आपको हमेशा लेके चलना चाहिए। और ये चेंज मिलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, दुकानों पे मिलते हैं, बहुत सी जगहों पर जो है लोग चाहते हैं कि कोई उनसे ये चेंज लेकर के चले जाए। तो वो रखने की जिम्मेदारी असल में ऑटो वाले की है, देने वाले की जिम्मेदारी नहीं होती है। वो कभी कहता है कि भाई नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम लेकर के चेंज आओ, मुझे इतना चाहिए जो है। क्यों नहीं है? ये अखलाकी तौर पर ये बात, ये अखलाकी बात कर रहा हूँ, ये कोई कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़ाब्ते की बात नहीं, अखलाकी बात ये है कि जो आदमी बैठा है ना, उसको ये पता नहीं कि कितने रुपये होंगे, कि उतना वो पहले से कहीं से चेंज लेकर के आपके साथ आएगा। लेकिन आपको ये पता है कि जो भी आएगा बैठने वाला, वो कभी उसका कम भी होगा, ज्यादा भी होगा, कभी जो है 1 रुपये, कभी 2 रुपये, कभी 4 रुपये, 5 रुपये मुझे वापस करना होगा। तो आपको लेके चलना पड़ता है उसको, और लेके चलते थे लोग। आजकल एक ताव बन गया है कि जो है वही नहीं है जो है, तो आदमी कहाँ खार होता फिरेगा, किसके पास जाएगा चेंज लेने, तो चल ले जाओ, रखो जो है, क्या करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ी सी यहाँ पर अमानतदारी दिखाना चाहिए। 1-2 रुपया किसी का छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, वो छोड़ भी दें, खुशी खुशी छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया, चेंज नहीं था, वो भी बात नहीं कोई, तब यहाँ कोई मसला नहीं आता। ये अखलाकी बात मैं कह रहा हूँ, कि जो है इसमें ये अखलाकी जिम्मेदारी होती है कि इसकी पाबंदी करनी चाहिए। और ये बहरहाल वो ऑटो के ये जो है आपके जो सवाल थे, उसके लिहाज से मैंने ये बातें कही। ये बहुत मशहूर है ना, सुना होगा आपने, कि होटल पे आप खाना खाने जाते हैं, वेटर ने ला करके आपको बिल दिया, आप वो बिल देखते हैं, पे करते हैं, तो उसके लिए टिप उसमें रख देते हैं, बड़ी शान दिखाते हैं कि जो है 50 रुपया, 100 रुपया दिया। किसी मजबूर शख्स की मदद करने को हम पीछे रहते हैं, लेकिन यहाँ टिप देने में बड़े आगे रहते हैं, जबकि उनको उतनी पैसों की जरूरत नहीं होती, जितने गरीब मिस्किन बहुत से लोग होंगे उनको जरूरत होगी। तो ये हमने जो शेखियां दिखाई ना, तो इसके भी बड़े नुकसानात हैं जो, खैर ये हाँ आपसे सवाल से हट करके चीज होने लगी। हाँ जी, किसी और कोई और सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं कोई। जी शेख, इसमें एक चीज भी ये भी है ना कि कभी ना ये मैंने देखा है कि उबर पे हम कभी ये करते हैं, हम्म बुक करते हैं, या ओला में भी करते हैं, लेकिन उसमें क्या हम्म होता है कभी हम बुक करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये दिखा दिया उसने। हम्म। फिर जब वहां पहुंच के हम रहते हैं तो वो 120 रुपया बोलता, नहीं हो गया आपको, तो हम पे करते हैं। लेकिन हम्म। इनका एक अच्छा सिस्टम ये है कि मतलब हम फिर उनको कंप्लेन करते हैं, हमें इतना जी पैसा हाँ। आया था तो हमें इतने ले लिए, फिर से एक वो रिफंड कर देते हैं वो पैसा, जी हाँ। वो इनमें है। तो जी अब तो हाँ। ऑटो वाले में तो वो हम नहीं देख सकते हैं वहाँ तो जी हाँ। जी मजबूर है। हाँ। जी हाँ। जी हाँ। लेकिन जी हाँ। ये जो ओला उबर होता है इनका होता है हाँ, रिफंड उसमें तो सिस्टम। बाकायदा कंप्लेन करनी भी चाहिए इन लोगों की। जी शेख, जी शेख, जी और हाँ। फिर जी वो हाँ। पैसे डाल डाल भी देते हैं, मतलब जी हाँ। वापस जी हाँ। जी हाँ। कितना जी हाँ। भी ज्यादा हुआ हम्म। है। ठीक है साहब, इसी पर आज का दर्स खत्म करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।